مسیح کے اندر آتے ہیں، آج جو آپ بپتسمہ لیتے ہیں اور مسیح کے اندر آتے ہیں تو یاد رکھیے گا دوستو آپ زندہ خدا میں آ گئے، اور جب پھر آپ دوبارہ وہی حرکتیں کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، تو آپ دوبارہ اسی غیر قوم میں چلے جاتے ہیں۔ مسیح نو چوم کے، مسیح نو پیار کر کے، مسیح نہ گلے لا کے انہوں پر کہتے ہیں اچھا چلو جی ٹھیک ہے، اور نہیں پھر اپنی پرانی زندگی سے جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے جب پرانی زندگی میں جاتا ہے اس کے بارے میں پطرس کے خط میں لکھا ہے وہ سور کی مانند ہے، وہ سور کی مانند ہے جسے نہلا دھلا کر پاک کیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر جا کے گند میں بیٹھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سور کھاتا کیا ہے، رہتا کیا ہے؟ کہاں رہتا ہے سور؟ گند کیا ہوتا ہے؟ دوسرے جانوروں کی پوٹی میں رہتا ہے۔ اور جب آپ پرانی زندگی میں جاتے ہیں تو یاد رکھیے خدا آپ کو اس چیز سے تشبیہ دیتا ہے، ہاتھ سے بنائے ہوئے شاہکار کو کہتا ہے تو ایک گند کا لوتھڑا ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں، اور وہ کہتا ہے تو وہ کتا ہے، تو وہ کتا ہے جو اپنی الٹی کر کے چاٹتا ہے۔ کتنا برا لگتا ہے سن کے۔ تو سوچے جب آپ گناہ کرتے تو خدا آپ کو کتا ہی کہہ رہا ہے، خدا آپ کو سور ہی کہہ رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں او ہو اے زبان نہ بولو، او ہو تو پھر یہ کٹ دو۔ خدا تو کہتا ہے سانپ کے بچوں، خدا تو کہتا ہے سور، خدا تو کہتا ہے کتے۔ ان کو کہتا ہے جو بپتسمہ لینے کے بعد دوبارہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں۔ اور جو بپتسمہ نہیں بھی لے لیتے وہ بھی گناہ کرتے ہیں، ان کو بھی یہی کہتا ہے وہ۔ آپ کے لیے مسیح نے جان دی ہے، آپ کے لیے مسیح نے جان دی ہے، تو وہ آپ کو کیسے چھوڑ دے؟ اور جب آپ اسے چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کتا بھی بناتا ہے، وہ آپ کو سور بھی بناتا ہے، اور جو خدام، جو خادمین، جو پاسبان غلط کلام کرتے ہیں انہیں تو وہ گنگے کتے کہتا ہے۔ یہ صاحب کی ایڈ کے مطابق کیا کہتا ہے کہ گنگے کتے ہیں۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ آپ کو سانپ کی نسل کہتا ہے۔ آپ بھی جانتے یونس باغی کے پاس جب فقیر فریسی آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان میں سردار قائم بھی تھے، تو کیا کہتے ہیں؟ اے سانپ کے بچوں، انہوں ڈائریکٹ شیطان دی نسل کہہ رہے تھے۔ کی کہہ رہے؟ شیطان کی نسلوں۔ آپ کے اور ہمارے اس وقت کے پاسبانوں کو وہ کہہ رہا تھا۔ تو جو غلط کلام سناتے ہیں خدا انہیں بڑے برے الفاظ سے بیان کرتا ہے، جو غلط حرکت کرتا ہے خدا انہیں بڑے برے الفاظ سے بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا خدا عمروں کو نہیں دیکھتا، چاہے چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو۔ اب بچوں کی جب بات ہو رہی ہے تو مقدسہ روت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ روت جو تھی یہ زندہ خدا کے ساتھ چلتی رہی، اور یہ کہتی کیا ہے؟ روت نے کہا میں تیری منت، سنیے گا، روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں وہاں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں وہاں رہوں گی۔ میں تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، جہاں تو مرے گی میں مروں گی، جہاں تو دفن ہوگی میں دفن ہوں گی۔ خدا مجھ سے ایسا ہی بالکل خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی چیز مجھ کو تجھ سے جدا نہ کرے۔ عزیزو یاد رکھیے گا یہ روت ایسی عورت تھی، آج آپ کے سامنے بھی بچیاں ہیں، عورتیں ہیں۔ ایک یہ عورت تھی یہ غیر قوم سے آئی تھی، سنیے گا صحیح، ایک یہ عورت تھی جو غیر قوم سے آئی تھی، یہ دیوتاؤں کو مانتی تھی، یہ بتوں کو مانتی تھی، یہ معبودوں کو مانتی تھی، اور 4200 مذہب اس دنیا میں، مسیح کے علاوہ ساری بت ہیں، مسیح کے علاوہ ساری دیوتا ہیں، مسیح کے علاوہ ساری شیاطین ہیں۔ اچھا باہر جا کے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے سنیے گا غور سے، زندہ خدا فرماتا ہے کہ روت نے مجھے قبول کیا، تو روت نایومی کو کیا کہتی ہے؟ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، تو جہاں جائے گی میں وہاں جاؤں گی، تو جہاں رہے گی میں وہاں رہوں گی، تو جہاں مرے گی میں وہاں مروں گی، تو دفن ہوگی میں وہاں دفن ہوگی۔ یاد رکھیے گا وہ زندہ خدا کی سورما جو تھی وہ نایومی کے ساتھ رہی، یہ بہو اور ساس کا ملاپ، یہ تھا بہو اور ساس کی محبت، ماں اور بیٹی کی محبت، بہو اور ساس کی محبت، ماں اور بیٹی کی محبت، اتنی گہری محبت کہ وہ کہتی کہ دیکھ میں تجھ سے جدا کبھی نہ ہوں گی، اگر موت ہم کو جدا کرے
تو وہ کرے لیکن میں تجھ سے جدا نہ ہوں گی. وہ اپنی ماں کی اتنی فرما بردار رہی, اپنی ساس کی اتنی فرما بردار رہی, اور ساس اپنی بہو کی فرما بردار رہی, ماں اپنی بیٹی کی فرما بردار رہی. اور جب یہ دونوں فرما بردار ایک دوسرے کے رہے, یہ دونوں جب ایک دوسرے کے فرما بردار رہے, تو یاد رکھیے گا جو ان کو نورینہ فرزند ملا, جو ان کو بیٹا ملا, جو ان کو برکت ملی, اس کے اندر سے انوائنٹنگ نکلی, اس کے اندر سے جلال نکلا, اس کے اندر سے زندہ خدا کا سورما داؤد پیدا ہوا, اس کے اندر سے زندہ خدا کا سورما سلیمان پیدا ہوا, اس کے اندر سے زندہ خدا کا سورما روبام پیدا ہوا, اس کے اندر سے زندہ خدا کا سورما یربعام پیدا ہوا. آپ جب زندہ خدا کے ساتھ چلیں گے, خاص کر ماؤں بہن بیٹیوں کے لیے, آپ جب زندہ خدا کے سورما کے ساتھ چلیں گے, آپ جب زندہ خدا کے ساتھ چلیں گے, زندہ خدا کی منادی کریں گے, زندہ خدا کے نام کو للکاریں گے, آنے والے 2 گواہ آپ ہی سے پیدا ہوں گے. زندہ خدا کے لوگ آپ سے پیدا ہوں گے, زندہ خدا کے مقدسین آپ سے پیدا ہوں گے, آپ سے نبی پیدا ہوں گے, آپ سے رسول پیدا ہوں گے, آپ سے انبیاء مرسلین پیدا ہوں گے, آپ سے انبیاء اکبر پیدا ہوں گے, آپ سے انبیاء اصغر پیدا ہوں گے, آپ سے مبشر پیدا ہوں گے, آپ سے نبی پیدا ہوں گے. یاد رکھیے گا, آپ ماں ہوں گی داؤد کی, آپ دادی ہوگی سلیمان کی, آپ پردادی ہوگی رہبام کی, آپ زندہ خدا کے لوگوں کی والدہ ہوگی, اور زندہ خدا کے نسب نامے میں اس روت کا, اس غیر قوم کی بیٹی کا, جو زندہ خدا کو نہیں مانتی بلکہ شیطان کو مانتی تھی, جب زندہ خدا کے ساتھ ہے تو یسوع مسیح کی دادی پردادیوں میں اس کا نام لکھا گیا. ہاللویا, یسوع مسیح کی دادی پردادی کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. جب ہم متی پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں نسب نامہ آتا ہے. کس کو اپنے ابا کا نام پتا ہے؟ نام پتا ہے آپ کو اپنے ابا کا؟ کس کو نہیں پتا اپنے ابا کا نام؟ پہلے سوال سن لیا کرے پھر جواب. کس کو اپنے ابا کا نام پتا نہیں ہے؟ چلیے اپنے ابا کا نام بتائیے. کیا نام ہے اپنے ابا کا؟ آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ آپ کے جی عبدالستار. یاد رکھیے گا دوستو, کسی کو اپنے دادے کا نام پتا ہے؟ ساری شروع ہو گئی. عبداللہ. پردادے کا نام پتا ہے؟ پردادے کا نام پتا ہے؟ میرے پردادے کا نام تھا سونی. پتہ نہیں ہو رہے, سونی. ہاں سونی. تو سونی اس لیے کیونکہ وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ باہر سے انگریز کوئی آیا ہے. میں تو بہت ان کا اچھا کھاتا تھا. خیر جو بھی ہے, آپ کو اپنے دادوں پردادوں کا نام نہیں پتا. دادے کا پتا تو پردادے کا نہیں پتا. ان کو پتا تھا. یسوع مسیح کو پتا تھا میری دادی پردادی میں ایک غیر قوم سے آئی ہے, میں اس کی نسل ہوں. اب وہ غیر قوم سے آئی ہے, اور یسوع مسیح کو پتا تھا میری دادی پردادی موآب کی تھی, غیر قوموں میں رہتی تھی, اور میں اس میں سے پیدا ہوا ہوں. یہ کوئی چھوٹا احساس ہے دوستو؟ بچوں کی بات کرتے ہیں, آپ نعمان کوڑی کو جانتے ہیں. وہاں پر ایک چھوٹی بچی تھی, نعمان کوڑی کو کوڑ کی بیماری تھی. تو زندہ خدا کا سورما کہتا ہے, زندہ خدا کی سورما جو بیٹی تھی وہ کہتی ہے آپ بھی انہی بچیوں کی طرح. یاد رکھیے گا وہ چھوٹی بچی تھی, زندگی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے چھوکری. اور چھوکری کے لیے جو لفظ استعمال آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس کنگ جیمز ورژن میں حوالے کا ینگ گرل. اور ینگ گرل جو ہے وہ 14 سے 16 سال کی لڑکی ہوتی ہے, اور آپ میں سے بہت ایسے ہیں. اب اس نے کام کیا کیا؟ اس کے اندر یہ پاک کلام تھا. اماں روت کے اندر بھی پاک کلام, اور اماں اس بچی کے اندر بھی پاک کلام. اور وہ بچی کیا کہتی ہے؟ وہ نعمان کوڑی سے کہتی ہے, اس کی بیوی سے کہتی ہے کہ کاش میرا خداوند وہاں جاتا, سامریا کے اندر تو وہاں ایک نبی ہے الیشا, اس سے ملتا. تو الیشا نبی سے جب ملتا تو وہ اس کے کوڑ کی بیماری کو دور کر دیتا. اس بچی کی وجہ سے سنیے گا, وہ جاتا ہے الیشا کے پاس بڑے بڑے خزانے, بڑے بڑے انعامات, بڑے بڑے گفٹ لے کر, لیکن الیشا کیسے باہر جاتا؟ وہ کہتا ہے جا کے یردن میں کتنے بوتل لے لے,
गर्दन में जाके 7 गोते ले ले, वो पहला गोता लेता है, वो दूसरा गोता लेता है, वो तीसरा गोता लेता है, वो चौथा, पांचवा, छठा, वो कहता है ये क्या तमाशा है भाई, या तो पाक साफ हो ही नहीं रहे। क्या मेरे शहर में इतनी वीआईपी किस्म की नदियां ना थी, मैं उनमें ले लेता कि दरिया गर्दन में मुझे कह रहा गोते लगाओ। मैं तो समझा था कि मुझे यहाँ हाथ लगाएगा, मुझे यहाँ हाथ लगाएगा, मेरा कोड़ दूर हो जाएगा। इसने तो गेट ही नहीं खोला। तो साथ में कहता है चल ठीक है साजी 6 ले ले, एक भी तो परा ले लो। और जब याद रखिएगा उस छोटी बच्ची के वसीला से जब उसने 7वां गोता लिया तो उसका जिस्म ऐसा हो गया जैसे मैंने आपको वकास का बताया था, एकदम न्यू बॉर्न बेबी की तरह। और जब पैदा होता है बच्चा तो उसको जब आप देखते हैं वो निहायत ही नर्म मुलायम और उस पर कोई गुनाह नहीं होता, और नए सिरे से पैदा हुआ वो बच्चा होता है। तो याद रखिएगा नए सिरे से पैदा हुआ वो नुमान बोड़ी, और नुमान बोड़ी वापस जाता है अलीशा के पास। वो कहता है देख मुझे छोकरी ने कहा था, मुझे उस लड़की ने कहा था, वो लड़की छोटी सी है, उसके अंदर बड़ा कलाम है, वो तेरे साथ रहती थी, वो तेरे को नबी मानती है, उसने मुझे कहा तेरे पास आ, चल प्रिय हदिया और नजराने ले ले। उन्हें ले के नहीं, ले के नहीं, पहली जबरदस्त आप लोग खुदा और बरकत है, उसने नदिये नजराने नहीं लिए। पता है क्यों? खुदा को पता था इसका मास्टर प्लान क्या होगा। अगर वो हदिये नजराने ले लेता तो हदिये नजराने लेकर वो वापस क्या करता, चला जाता। लेकिन जब अलीशा ने ना की, उसने कहा ले ले यार ले ले, तुझे पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। ये नाकाबिले बर्दाश्त एक बीमारी थी, ये ला इलाज बीमारी थी, ये लाइपर्सी थी, ये कोड़ था, ये मुझे तूने बचा लिया है, उस बच्ची छोटी बच्ची के वसीला से तूने मुझे बचा लिया, ये ले ले कुछ तो ले ले। उसने कहा खुदा की सौगंध, खुदा की कसम मैं तुझसे कुछ ना लूंगा। उसने कहा चल थोड़ा बहुत ले ले, उसने कहा मैं तुझसे कुछ ना लूंगा। उसने कहा चल थोड़ा सा ले ले, उसने कहा मैं कुछ नहीं लूंगा। उसने कहा चल बादशाही लिबास लाओ, यही ले ले, ना सोना ले ना चांदी ले, ये लिबास ही ले ले। उसने कहा मैं कुछ नहीं लूंगा। उसने कहा चल ठीक है, ये 2 गधों की खच्चर, ये 2 खच्चर है, इनके वजन की मुझे रेती दे दे अपनी जमीन की। अब रेती से होगा क्या? उसने कहा रेती दे दे जमीन की, मैं अपने मुल्क में वापिस जाऊंगा, मैं अपने मुल्क में वापिस जाऊंगा, और मेरा जो खुदा है और मेरा जो बादशाह है और मेरा जो हाकिम है वो गैर मौजूदों की प्रसिद्ध करता है। मैं उसे कहूंगा ऐ मेरे बादशाह, इस जगह के ऊपर इस यहोवा पाक खुदा की एक मज़बा बना, एक यहोवा पाक खुदा का यहाँ पे कुर्बान का बना, एक यहोवा पाक खुदा का एक ऑल्टर बना, एक अल्तार बना, और यहाँ पर कुर्बानी किसी और माबूद की नहीं बल्कि यहोवा खुदा की होगी। हालेलुया! ये छोटी बच्ची के लिए एक बार जोरदार ताली। ये है हमारी नस्ल के छोटे बच्चे। मैंने एक छोटा बच्चा देखा, वो मेरा स्टूडेंट था, अभी नहीं है। वो कितना सा बच्चा होगा, इससे भी छोटा होगा। वो उसकी वीडियोस लगा के स्टेटस पे लगा। तो वो एक फिल्म आई थी, वो खुशका क्या है, वो ऐसे करके ना घूमे जा रहा है। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई बात सुन, तू मेरा तो अभी शागिर्द रहा नहीं, तू तो किसी नरगस का शागिर्द हो गया। कह रहा क्यों? मैंने कहा ये तूने क्या सिखाया? अरे भाई वो नई फिल्म आई है, ये उसकी वो समझ रहे हैं आप हमारे बच्चे किस तरफ को जा रहे हैं। माँ प्यो बच्चे जो छोटे हो ना तंग करते हो, माँ प्यो चल मार। अच्छा फिर दादा तंग कर आला फोन ले ला की कर फोन दे जो कार्टून ही वेंदे मैंने थोड़े जे बड़े होंगे ना आप कार्टून बने होंगे। होता है क्या नहीं? जब थोड़े बड़े होते हैं तो क्या होते हैं, वो खुद ही क्या बने होते हैं, कार्टून बने होते हैं। कौन कौन है जो अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देता है कि आ लो कार्टून खेल लो या पता नहीं कौन कौन कोई ऐसा करता है घर में? छोटी बेटी देता कौन है? वो बेचारी उत्ते इल्जाम लाई है असि होने के लिए प्यार है तो कोई गुनाह नहीं हो रहा तो इल्जाम ठोक देता नहीं। तो मम्मा पापा को भाई सुधारे ना, उनको जरा टाइट करें, नहीं टाइट करते तो डंडा उठाएं। बाइबल में तो लिखा है सोटा उठाने से तेरे बच्चे मर ना जाएंगे बल्कि हमेशा की आग से बच जाएंगे। तो सोटा उठाएं। माँ बाप लोगों को खुद तक बिगड़े हुए ना भी बिगाड़ना जी। अच्छा थोड़े से बड़े हो जाए फिर टिकटॉक बनना शुरू हो जाती। अच्छा आपके अपनी लाइफ से दसो कितने कितने टिकटॉक बनाए जाते? ये वकार भाई हैं। अच्छा वकार भाई को तो हमने टिकटॉक देखी है बहुत ही पुरानी। अच्छा आप भी बनाते थे?
थी, ये इन्होंने क्लियर कर दिया, थी। आप बनाती हैं या थी? अच्छा, आपको पता है टिकटॉक प्लेटफॉर्म एक बहुत बाबरकत प्लेटफॉर्म है। 1 मिनट होता है उस पर वीडियो बनाने का, लोग की 10-10 मिनट ही पता नहीं कि खाची खराबा करके थे, चलो जी फारिग करोगे, सेंड करो, अपनी औकात दिखा के आगे फारिग कर देते हैं। 1 मिनट होता है, आप 1 मिनट में एक आयत पढ़ सकते हैं। 1 मिनट होता है, आप 1 मिनट में 2 आयतें पढ़ सकते हैं। होता है बाइबल। हमारे मेरे कई 2-4 ऐसे शागिर्द हैं, वो उन्होंने टिकटॉक लगाए इसीलिए, वो पढ़ती आयतें। 1 मिनट बहुत होता है, 2-3 आयतें आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप टिकटॉक को इसलिए इस्तेमाल करें, वो रोज पे लिया तो टिकटॉक से तो नचना है, टपना है, गाना है, या फिर आपने मुंह डिंगे चिब्बे बना लेने, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, तो खुदा ने उनकी चिब्बा ही बना देना मुंह, फिर क्या है। अच्छा, कहीं आपने देखोगे वो सुअर के कान लगाए होंगे, बंदरिया का मुंह लगाया होता है, कुत्तों का मुंह लगाया होता है, ऐसे देखा है। स्नैपचैट है, फिल्टर है। याद रखिएगा, खुदा ने आपको किस शक्ल और छवि पर बनाया, किस शक्ल और छवि पर बनाया। तुसी कुत्ते पे बांधे हो है, और कुत्ता एक रखा ओनू ते अपने मुंह नू नाल ला के स्नैपचैट बना दो, आई दोवें भैन भरा। ऐसे ही होगा, सुअर को भी ले आए, उसके साथ भी बना ले। खुदा ने आपको अपनी शक्ल और छवि पर पैदा किया, अपनी सूरत पर पैदा किया, अपनी शक्ल पर पैदा किया, अपनी छवि पर पैदा किया, अपनी सूरत पर पैदा किया। तो तुसी कुत्ते पे बांधे हो, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ पे बांधे हो, तो फिर जिन कुत्ते सूਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਹਿਨਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਜੀ ਹੈ जी। वही एक है ना, और जबान लंबी करके फिर ना बताइए, वही कुत्ते वाला, कुत्ता बनने का बड़ा शौक है हमारे लोगों को, तो बने भाई कुत्ते। हमें इससे क्या है, जिनने ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी शक्ल और सूरत से बनाया है, फिर वही डंडा फेरेगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ सकने हैं कि तौबा कर दो, ठीक कर दो। आपने बच्चे ऐसे देखे होंगे, ऐसे होते हैं, क्या वो मसीह है? उनका मसीहत से कोई लेना देना नहीं, उनका मसीहत से कोई लेना देना नहीं। खुदा ने कहते कुत्ते और सूअर और सांप की नस्ल, यानी शैतान की नस्ल। बाइबल में लिखा है, तेरे जिस्म से मेरा जलाल जाहिर हो, तेरे जिस्म से मेरा जलाल जाहिर हो। गैर कौमों में जब जाओ तो तेरा चाल चलन ऐसा हो कि तेरे चाल चलन से लोग ईमान लाएं। किस पर? मेरे पे, मसीह पर। गैर कौमों में आपका चाल चलन ऐसा हो कि आपको देखकर गैर कौम ईमान लाएंगे, नहीं यार ये मसीह है, इसकी लाइफ देखो, ये लड़का, ये लड़की, लड़कियों पे आज कलाम है, कहते ये लड़की को देखो। मैं आपको एक सुनहरा लड़की की बात बता दूं, हमारे साथ ग्रुप में भी है, नर्स है। आपको पता है नर्सिंग फील्ड जो ज्यादातर हमारे मजहब के अंदर या हमारे कम्युनिटी के अंदर बुरी मानी जाती है। वो रातों को अकेले नाइट ड्यूटी करती थी, एक ही डिपार्टमेंट जनरल वार्ड में अकेला नर्स होता है, होते 2 हैं, लेकिन एक सोने चले जाता है, एक फिर ड्यूटी देता है, फिर दूसरा सोने चला। वो लड़की अकेली वहां पे होती थी, मैं उस वक्त टाइम कीपर असिस्टेंट था, तो मैं जाके उनके साथ गपशप लगाता था, क्योंकि जब कोई लड़की अपने आप को गैरत में रखती है ना, तो हम उसे फौरन ही अपनी बहन बना लेते हैं। लेकिन जब लड़की अपने को गैरत नहीं ना रखती, हम उस पर 2 लानते ऐसे देते हैं और 2 लानते ऐसे भी देते हैं, यार दबाओ, जब भाड़ में जाओ, आपका हमारे से क्या लेना। गैरतमंद रहे तो हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन अगर बगैरती पे उतर आए तो आपका हमारे से कोई लेना देना है ही नहीं। इज्जत से रहे। वो लड़की, ऐसे ऐसे पठान थे लड़के, उन्होंने ऐसी ऐसी बदतमीजी की, याद रखेगा उस अकेली लड़की ने उनका गिरफ्तार पकड़ के उसको थप्पड़ मारे। नौकरी जाती है जाए, तुम मुझे अकेला यहाँ देख के क्या समझते हो? टाइम कीपर इसलिए क्योंकि मैं नीचे रिसेप्शन पे होता था, कंप्लेन मुझे ही आई, तो फिर जाके फिर हमने भी सही खूब हादसा किए वहां पे, और पेशेंट भी उठा के बाहर फेंका। नौकरी जाती है जाए, लेकिन ईमान ना जाने पर। जान जाती है जाए तो ईमान। नर्सिंग फील्ड में भी ऐसे ऐसे जिंदा खुदा के दलेर सूरमा लोग पड़े हुए हैं। आपके ऊपर खुदा ने छोड़ा कि आप कैसी औरत बनना चाहती हैं, आपके ऊपर खुदा ने छोड़ा कि आप कैसी लड़की बनना चाहती हैं, आपके ऊपर खुदा ने छोड़ा आप कैसे खुदा के बच्चे बनना चाहते हैं। मैंने आपके सामने छोकरी की मिसाल रखी जो छोटी बच्ची थी, मैंने आपके सामने अम्मा रूत की मिसाल रखी, आखिरी मिसाल आपके सामने रखता हूं। आपने सामरी औरत को देखा होगा। अब ये दोनों तो थे मुकद्दसीन, ये दोनों तो थी मुकद्दसीन, बल्कि एक गैर कौम से आई थी और एक थी जिंदा खुदा की कौम बनी इसराइल से। अब तीसरी जो है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपके सामने आखिरी एक औरत की बात करता हूं जो हमारी माओ में से एक माँ है, वो है सामरी औरत। सामरी औरत के बारे में किस किस ने सुना हुआ है? हाथ खड़ा करके। किस
किताब में उनका जिक्र है? किस बाब में उनका जिक्र है? किस बाब में उनका जिक्र है? 4 बाब में, 4 बाब पूरे उन पे लिख दिया है। और वो यूहन्ना की इंजील है। किसकी इंजील है? यूहन्ना की इंजील। याद रखिएगा दोस्तों, वो खुदावंद के पास जाती है, खुदावंद उन्हें कहता है औरत मुझे क्या पिला? पानी पिला। औरत कहती है तू यहूदी होकर, उसका गेटअप देख के देखती, तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगती है? क्यों मांगता है? तो कहता अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। अब जब जिंदगी का पानी चाहिए, जब जिंदगी का पानी चाहिए तो याद रखिएगा, वो कहते हैं खुदा मेरे पास जिंदगी का पानी था, तो तेरे को कोई बाल्टी है ना, को तेरे को कोई बाल्टा है ना, को तेरे को कोई डोंगा है ना, तेरे को कोई हथियार है। तू एडी डूंगी नहर के विचों, सॉरी वो कुएं में से कैसे निकालेगा? वो अभी तक पानी किसी और चीज को समझ रही थी। जैसे आज का टॉपिक हमने दोपहर में किया कि उन्होंने आसमानी मन खाया और आसमानी पानी पिया। वो पानी था क्या? वो कह रहे थे जो मुझ पर ईमान लाए। अब उसको समझ नहीं आ रही, पता क्यों? और भी माँ बाप नकम्मे ही सन, उन्हें दसिया ही नहीं कि जिंदगी का पानी की हुंदा है। तुसी अज जड़े हो ना बड़े खुश नसीब हो, तो तुहानू अज पता चलने लगा है जिंदगी का पानी कौन है, जिंदगी की रोटी कौन है। तो तुसी बच्चे उस छोकरी का बनना है जो बड़े बड़े बादशाहां नू मरन तो बचाते। तुसा उस बच्चों वांगू बनना है जो गैर कौमां चों आके जिंदा खुदा दा नाम ललकारदे ने। तुहाडे अंदरों अनॉइंटिंग पैदा होती है, तुहाडे अंदरों जलाल पैदा होता है। जलाल पैदा होने का मतलब यह है कि आपके अंदर से बड़े बड़े सूरमा, यीशु मसीह जैसा सूरमा जो कि खुद खुदा है, पैदा होता है। अब जब सामरी औरत से कहा गया कि जा तू अपने हस्बैंड को ले आ, तो कहती है मेरा हस्बैंड नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तू वाकई सही कहती, तेरा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि तू कितने कर चुकी? 5 और 2 तू अपने लिए ला छड़े। तो 5 तो कर चुकी, लेकिन जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। इतनी बदकार औरत आज तक वेखी तू अपने महल्ले च इंज दी बदकार औरत, जिन्हें 5 तो पहला कर चुके, ते जेड़ा 6वें जिले को रह रही है वो भी ओदा नहीं है। कभी देखी ऐसी औरत आपने? नहीं देखी। देखिए उन्हें भी नहीं किया, उन्होंने 6वां कर दिया। बस और अभी सेवा ही साहब। मेरा मतलब मेरे यहाँ सही हो गया ना मेरे सर। दियोर नाल हो गया ना कि शादी। अच्छा चले चले ठीक। अब सुनिएगा, पता नहीं क्या है कलाम बोले। तो 5 तो कर चुकी और जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। तो वो कहती है कि तूने मुझे कैसे पहचान लिया, और तू तो मेरे सारे बेस सुनता है। इधर सुनिए, तो याद रखिएगा दोस्तों, जिंदा खुदा उस औरत को कहता है। याद रखिएगा, आप जिस औरत को भी ऐसे जानते हैं जिन्हें 1 कीता है, जिन्हें 2 कीते हो, एक वाला जायज है, दूसरा वाला जायज नहीं, जिन्हें 3 कीता है, जिन्हें 4 कीता है, जिन्हें 5वां कीता है, तो जिन्हें 6वां कीता है, जिंदा खुदा उसे भी सीने से लगाने के लिए तैयार है। जिंदा खुदा टिकटॉकरों को भी सीने से लगाने के लिए तैयार है। जिंदा खुदा कुत्ते के मुंह बनाने वालों को भी सीने से लगाने के लिए तैयार है। जिंदा खुदा सुअर के मुंह को बनाने वाले को भी अपने सीने से लगाने के लिए तैयार है। जिंदा खुदा जीभें बाहर निकालने वालों को भी अपने मुंह से, अपने सीने से लगाने के लिए तैयार है। जिंदा खुदा जिसने 6 की, उसको भी अपने सीने से लगाने के लिए तैयार है। और कहता क्या है? कहता यह है कि देख, अगर तू मुझ पर ईमान लाती है तो यही जिंदगी का पानी है। अगर तू मुझ में से पिएगी तो तेरे अंदर से आबशार, तेरे अंदर से पानी की नदियां आबशार फूट निकलेंगे। एक एड़ा पानी पीवो ते अंदरों आबशार ही निकलने लगे। बंदा है, फुहारा है। तो क्या समझते हैं आप? आपको क्या समझ आती है? क्या समझते हैं? कलाम निकलेगा, कलाम निकलेगा। कलाम निकलेगा। कैसे निकलेगा? उस पे ईमान लाने से, उसकी बातें सुनने से भी वो लोगों को तक पहुंचाएगा। वकार भाई के लिए जोरदार ताली। एक उधरों आके साढ़े तो अगे निकल जाना, तो साढ़े बच्चे ने बुद्धि वेदे रहना। तो याद रखिएगा, जिंदा खुदा क्या फरमाता है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, दो के वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो आसमान से उतरी हुई रोटी मैं हूं, और जो मुझ में से खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। तुम्हारे बाप दादा ने आसमानी मन खाया, तुम्हारे बाप दादा ने आसमान से बटेरे खाए, तुम्हारे बाप दादा ने, मेरे बाप ने जब धुआं चलाई, मेरे बाप ने जब आंधी चलाई, मेरे बाप ने जब हवा चलाई, तो समंदर की रेत की तरह तुम्हें बटेरे मिले, तुम्हें आसमानी मन मिला।
लेकिन वो खा के क्या हो गए? लेकिन जो इस रोटी में से खाएगा वो मर भी जाए वो तो भी, जो इस रोटी में से खाएगा यानी जो मसीह पर ईमान लाएगा, वो कहती है खुदावंद मैं तुझे जानती हूँ तू क्रिस्तुस है। उसने कहा जो तू कहती है वो मैं हूँ, तू ईमान रख के मैं क्रिस्तुस हूँ यानी मसीह हूँ यानी जिंदा खुदा का बेटा। अब जब उस औरत को देखिए, वो औरत इतनी बदनाम, आपने जिसका नाम लिया जाके वो इंजील की मुनादी करे, कोई सुनेगा उसकी? जिसने 2 शादियां की इंजील की मुनादी सुनेगा उसकी? कई पीठ जे सुनते जे साडे महल्ले च पास बंद जिन्हें 2 शादियां कीतियां ने, लोग उन्होंने भी पीछे लगे हुए, लेकिन 5 से 6 शादियां की हो और बदकार औरत हो, क्या उसकी सुनेगा कोई? सुनेगा क्या? नहीं, नहीं सुनेगा। इतने गुनाह करने के बाद कोई इंसान किसी की नहीं सुनता, कहते जा जाके पहला अपने आप उठे सीधे आकर। तो याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन जब आप मसीह के सामने झुक जाते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को खाकसार कर देते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं, अपने जिस्म को खाली कर देते हैं, अपने गुनाहों को माफी मांगते हैं, रातों को रो रो कर दाऊद नबी की कहता है कि खुदावंद मेरी आंखें अब खत्म हो चुकी है, ऐ खुदावंद मैं जब रातों को रोता तो मेरा बिस्तर भीग चुका है, मुझे माफ कर। जब आप जिंदा खुदा के सामने आके अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो पूरी दुनिया आपकी सुनेगी। सामरिया में पूरा शहर सामरिया उस औरत की सुनता और यीशु के कदमों में आकर निजात पाता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीहा के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो याद रखिएगा, आप जब जिंदा खुदा के सामने आके माफी मांगते हैं तो खुदा आपके अंदर अपना कलाम डालता है और आप दुनिया की तरफ जाते हैं। आप मुकद्दसा मां मरियम को देखिए, वो भी आप की तरह बच्ची थी, वो भी आप की तरह टीनेजर थी, वो कोई बड़ी बुजुर्ग नहीं थी, आप की उम्र की एक लड़की थी। जब मसीह उससे पैदा होना था तो लोग उसे कहते थे ये क्या, अरे ये तो कुंवारी है, इसके अंदर ये कैसे बच्चा आ गया, ये तो बदचलन है, इसके तो चाल चलन ठीक नहीं। लेकिन उसने कहा खुदावंद मैं तेरी बंदी हूं, मैं इस बड़े प्लान को जानती हूं, मेरे लोग भी जानते हैं, लेकिन ये कुछ हैं जो शैतान की नस्ल से हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। शैतान इब्लीस शुरू से औरत के पीछे पड़ा है, औरत की नस्ल को गंदा करना चाहता है ताकि इसमें से मसीह पैदा ना हो। आप जानते हैं इस बात को। अदावत रखी गई पैदाइश 3 बाप में, तो 2 साल के बच्चे कब मारे गए? मूसा के जमाने में 2 साल के बच्चे कब मारे गए? मसीह के जमाने में। क्यों? क्योंकि उनको पता था इन्हें जड़े ने आना वे ओ मेरे सिर नु की करेगा, कुचलेगा। औरत की नस्ल ही गंदी कर दो, नहीं कर सके मार दो। आप देखते हैं पैदाइश 6 बाप में, आप नूह के जमाना में देखिए, क्या जब बाल पैदा होते पेट फाड़ के निकल जाते थे, औरत भी खत्म और नस्ल भी खत्म। मुकद्दसा मां मरियम ऐसी जिंदा खुदा की सूरमा थी, उसने खुदा मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, खुदा मेरे पर तोहमत लगा रहे हैं। मुकद्दस यूसुफ को भेजा जाके आज तो मेरी की है, क्या उनकी शादी हुई थी? तो बाइबल तो कहती है वो तेरी क्या है, तो शादी कैसे नहीं हुई? याद रखिएगा दोस्तों, जब आप जिंदा खुदा के साथ हो जाते हैं, आप जिंदा खुदा को अपना निजात जिंदा मानते हैं, तो वो औरत देख के कैसी मुकद्दस थी, वो औरत देख के कैसी जिंदा खुदा के साथ थी। अब जब आप यीशु के साथ लिपटे रहते हैं, तो यीशु के साथ जब लिपटे रहते हैं, तो इस जमीन के ऊपर आप कितने मुकद्दस लोग हैं। अम्मा हवा और बाप आदम का निकाह किसने करवाया? आज निकाह तुसी वेंदे हो ते कुड़ी दा फड़ के कौन लेके जाता है? निकाह के वक्त कुड़ी दा फड़ के कौन लेके जाता है दूल्हे को? उनका बाप लेकर जाता है। तेरा जो तो होएगा तो मुंह पता चले। उनका कौन लेकर जाता है? बाप लेकर जाता है। ते अम्मा हवा नु कौन लेके गया? बाइबल कहती है खुदा लेके गया, उसका बाप लेकर गया था। और वो कितने मुकद्दस लोग ने जिन्ना दा निकाह खुद खुदा करा रहे। याद रखिएगा, जब आप जिंदा खुदा के साथ चलेंगे, बहन बेटियां अगर जिंदा खुदा के साथ चलेंगी, तो आपका निकाह आसमान पर लिख दिया जाएगा। मुकद्दसा मां मरियम जिंदा खुदा के साथ चलती नहीं,
मुकद्दस फिलिप्पस की 4 बेटियां जो कुंवारियां थी वो नबियां थी। और जिंदा खुदा के साथ जब आप चलेंगे, उन 4 बेटियों के साथ आप चलेंगे, उन 4 बेटियों के कहे के ऊपर चलेंगे कि वो कुंवारी होती भी 4 नबियां थी, वो कुंवारी होती भी नबूवत करती थी, वो कुंवारी होती भी जिंदा खुदा के कलाम का प्रचार करती थी, वो कुंवारी होती भी जिंदा खुदा के नाम को लेती थी। तो याद रखिएगा, आपको खुदा वो मुकाशिफा जैसी औरत बनाएगा, आपको खुदा वो आसमान वाली औरत बनाएगा। कौन सी आसमान वाली औरत? इसके बारे में लिखा है कि यूहन्ना आरिफ अपनी किताब में लिख जोड़ कि मैं आसमान पर देखता हूँ एक औरत बनी हुई है और उस औरत के सर पर 12 ताज है और उसके पीछे जो है वो चांद को उसने ओढ़ा हुआ है और सूरज उसके पांव तले के नीचे। आप खुदा की नजर में एक मुकद्दस औरत होंगे, आप खुदा की नजर में मुकद्दसा मां मरियम की तरह होंगे। तो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इस कलाम को समझे बहन, बेटियां, बच्चियां, माएं, ये आप ही लोगों के लिए कलाम है। अगर आप सुन के इसको निग्लेक्ट करेंगे तो खुदा आपको कुत्ते और सुअर और शैतान की नस्ल कहता है। खुदावंद के साथ चलिए। खुदावंद के नसब नामे में 4 औरतों का जिक्र है, जिनमें ज़ारा है, जिनमें रूत है, जिनमें मुकद्दसा मां मरियम है और जिनमें राहब बादशाह है। इनके कैरेक्टर कोई अच्छे नहीं थे। मुकद्दसा मां मरियम को निकाल के, लेकिन याद रखिएगा इन तीनों के कैरेक्टर बहुत ही अजीब थे। लेकिन वो तौबा करके जब यीशु के पास आई, वो तौबा करके जब यीशु के पास आई, तो यीशु ने अपने दादी पड़दादियों में उनके नाम लिखवा दिए। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा के पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार